Good morning, 6th class students. Welcome to our mathematics class, students. Today we are going to start our chapter 10, pictograph. So what is pictograph, students? In the 9th chapter you have discussed what is data handling. If we are having a large amount of data, then we can represent that data by in a tabular form. Okay, by using the row and columns you can represent a large amount of data in tabular form. Using the frequency we can represent the tally marks. Large number of objects can be represented by using tally marks. Okay, and now what is the use of pictograph? When we are having a large amount of objects, then by using a single picture you can represent lots of amount of objects at a one time by one picture. Suppose in the question we are having look in the example. Okay, you can see here in the example we are having day and number of computers. Okay, then you can see we are representing computers by using the picture of computer. Okay, now how we have done here, you can see we are given days and number of computers sold. Okay, the number of computers are 8, 12, 6, 16, 4 and 20. Each is divisible by 2. So in spite of making 20 pictures, we can draw only 10 pictures. By making one computer we can represent two computers. Okay, so the scale we have taken, two computers are represented by using a single computer image. Okay, so you can see number of computers sold in the first are 8. On Tuesday we have sold 8 computers. So two computers are represented by one computer, one picture. So how many pictures are used for representing 8 computers? That is 4 2s are 8. ठीक है, we can divide each number by 2 because we are represented two computers by single picture. So we will divide each number by 2. ठीक है, उससे हमारे पास नंबर ऑफ पिक्चर्स आ जाएंगी. ठीक है, तो ट्यूसडे को हम 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 4 पिक्चर यूज़ करेंगे. वेडनेसडे को हम हाउ मेनी पिक्चर्स 12 है, 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ वी विल यूज़ 6 पिक्चर्स हेयर. थर्सडे को 6 हैं, so 6 by 2 we will represent here 3 pictures. 6 on Friday 16 by 2 that is we will represent here how many 2 8s are 16, so 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 pictures. On Saturday we are given 4 computers, that is 4 divided by 2 we will use 2 pictures here. On Sunday we have sold 20 computers, so we will represent how many 20 by 2 that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 computers. Okay, so similarly you can do the exercise sums, students. This is called, this type of graph is called what? Pictograph. Okay, now we'll continue with our exercise. So in the exercise 10.1, in the first question you can see we are given number of students, okay, and classes. Okay, class wise we are given how many students are represented are there in one class. We are given 5 classes, first, second, third, fourth, fifth. In the first class 50 students, second 60, third 40, fourth 55 and fifth 60. So you can see each class is having number of students which are divisible by 10. So easily you can either you can all the are divisible by 10 but not 55. So अगर ये भी हमारे पास 50 होता तो हम 10 स्टूडेंट्स को 1 पिक्चर्स का यूज़ करके रिप्रेजेंट कर देते. बट हेयर यू कैन सी 55 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10 बट डिविजिबल बाय 5. ईच इज़ डिविजिबल बाय 5. सो विल रिप्रेजेंट 5 स्टूडेंट्स बाय सिंगल पिक्चर.
So you can see we will use the scale 1 student 5 student 1 student equals to 5. Sorry, we will write here 5 student 1 picture. ओके तो यहाँ पे देखिए, हम अगर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं स्टार का, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टार। स्केल के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टार इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। ओके तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्लास में हमारे पास थे 50, सो 50 डिवाइडेड बाय 5 वी आर हैविंग 10 पिक्चर्स हियर। तो यहाँ पे हम कितने ड्रॉ करेंगे, हम यहाँ पे 10 स्टार्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके सिमिलरली इन द second class we are having 60 students, so how many, 60 divided by 5 we will represent 12 pictures here. So you will draw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okay, in this line you will draw 12 stars here. ठीक है, similarly each column can be filled by similar type of symbol. ठीक है, तो अगर हम स्टार यूज़ कर रहे हैं तो स्टार ही हम हर एक में फिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखी हैं कि हमें किस कॉलम में कितने स्टार्स फिल करने हैं। ओके सो यू कैन सी इन द क्वेश्चन वी आर गिवन in the third class 40. Okay, in third class we are having 40, so how many, 40 divided by 5 8. ठीक है, तो यहाँ पे हम 8 स्टार्ट करेंगे। इन द नेक्स्ट वी आर गिवन 55, सो 55 by 5 11. इन द फिफ्थ क्लास वी आर हैविंग 60 स्टूडेंट्स, दैट इज अगर हम 5 से 1 पिक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं तो 60 डिवाइड बाई 5 दैट इज़ 12। ठीक है, तो यहाँ 12 पिक्चर, यहाँ 11 पिक्चर, यहाँ 8 पिक्चर, यहाँ पे 12 पिक्चर और यहाँ पे 10 पिक्चर्स। ठीक है, तो पिक्चर आपकी चॉइस है, आप कोई भी पिक्चर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रायंगल, सर्कल, ठीक है, एनीथिंग यू कैन यूज़। सिमिलरली यू कैन डू द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आर सिमिलर, you can I think you can do it. Now come to the sixth sum. Here you can see we are given the following pictograph shows the number of cars sold by car dealer during 5 months. ठीक है, 5 months of a year. 5 months of a year में उसने देखिए कितनी की हैं, हमने स्केल लिया है 1 कार पिक्चर 10 कार्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इन्होंने पिक्टोग्राफ हमें दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन बताना है कि क्या आएगा। जनवरी में देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड वी आर गिवन द स्केल 1 पिक्चर इज शोइंग 10 कार्स। सो 6 से अगर हमने सिम्बल्स डाले हैं दैट मीन्स जनवरी में हमारे पास क्या हो गया, 6 × 10 60 कार्स। फेबररी में हमारे पास 1 2 3 3 × 10 30 कार्स। मार्च में हमारे पास 1 2 3 4 दैट इज़ 4 × 10 40 कार्स। अप्रैल में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 × 10 80 कार्स। मई में देखिए 1 2 3 4 5 दैट इज़ 5 × 10 50 कार्स। ओके सो you can see in the question what questions we are given. we have taken जनवरी में हमारे पास 60 कार्स हो गई हैं, फेबररी में 30 हो गए, मार्च में 40 हो गई हैं, अप्रैल में 80 हो गई हैं, मई में 50 हो गई हैं। नाउ वी कैन सी इजीली विच is asked in the A part how many cars were sold in March. मार्च में कितनी कार सोल्ड की गई हैं। ठीक है, इन द सेकेंड इन विच मंथ नंबर ऑफ कार्स वर सोल्ड मैक्सिमम, in which month number of cars were sold minimum, find total number of cars sold in the month of March, April and May. ठीक है, तो ए हम देख सकते हैं, you can see we are having in March how many cars, in March we are having 1 2 3 4 that is 4 × 10 40 cars. So in March 1 car how many cars sold, 4 × 10 40 cars. In April you can see
1 2 3 4 5 6 7 8, that is 8 into 10, 80 cars. So in April 80 cars. February में you can see how many pictures, 1 2 3, that means 3 into 10, 30 cars. In the last question we are asked find total numbers of cars sold in month of March, April and May. So in March we have sold 40 cars. ठीक है, मार्च में हमने 40, अप्रैल में हमने 80 की हैं. एंड इन द मंथ ऑफ मे यू कैन सी हाउ मैनी पिक्चर्स, 1 2 3 4 5, दैट इज़ 5 into 10, 50 कार्स. ठीक है, सो टोटल हमारे पास 40, 80 एंड 50, टोटल हमारे पास कितने हो गए हैं, 170 कार्स. ओके, नाउ इन द सेवंथ सम you can see we are given number of girl students in each class of co-educational middle school is represented by the given pictograph. ठीक है, तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ गर्ल स्टूडेंट्स ईच क्लास के दे रखे हैं. ठीक है, तो स्केल में हमारे पास देखिए क्या दे रखा है, स्केल में 1 गर्ल की जो पिक्चर है वो 6 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रही है. दैट मीन्स जो भी जितनी भी पिक्चर्स हैं उसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा किस क्लास में कितने नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्लासेस दी गई हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. एंड यहाँ पे ये नंबर ऑफ़ पिक्चर्स हमको दी गई हैं. इन द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी वी आर गिवन 1 2 3 4 5. ठीक है, तो 5 6 जा 30 गर्ल्स. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी 1 2 3 4 5 6. ओके, 6 girls, that means 6 6 ja 36 girls. In the third class you can see 1 2 3 pictures, that is 6 3 into 6, 18 girls. In the fourth class 1 2 3 4 5 6, that is 6 6 ja 36 girls. In the fifth class 1 2 3 4 5, that is 5 into 6, 30 girls. In the sixth class 1 2 3 4 5 6, that 7 8, that is 8 6 ja 48 girls. ठीक है, now we know in which class how many girls are there. Now we are given different question in the A part, which class has the minimum number of girl students. ठीक है, तो मिनिमम में देखिए जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ पिक्चर्स हैं 1 2 3 पिक्चर्स हैं मिनिमम, तो दैट इज़ द थर्ड क्लास. सो आवर आंसर विल बी थर्ड क्लास. एंड हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन थर्ड क्लास, 3 into 6, 18 girls. Okay, in the B part you can see we are asked in which two classes number of students are same. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम किस में है बेटा, देखिए in the second class we are having 1 2 3 4 5 6 picture, and also in the fourth class 1 2 3 4 5 6 पिक्चर्स. ठीक है, तो सेकेंड एंड फोर्थ बोथ क्लासेस में हमारे पास सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स. तो मैक्सिमम पिक्चर्स हमारे पास 8 पिक्चर्स हैं किसमें, सिक्स्थ क्लास में. ठीक है, तो हमारे पास मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स हैं इन द सिक्स्थ क्लास 8 6 जा 48. तो यहाँ पे देखिए क्लास नहीं लिख रखी, यहाँ पे क्लास फोर्थ. ठीक है, सेकेंड एंड फोर्थ आना है, फोर्थ एंड सेकेंड. ठीक है, तो ये आपकी मिस्टेक है, ये ठीक कर लीजिएगा. इन द डी पार्ट वी आर आस्क्ड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन द स्कूल. तो जो हमारे पास 6 क्लासेस हैं 1 to 6, उनकी नंबर ऑफ़ गर्ल्स को हम क्या कर देंगे, ऐड. तो फर्स्ट क्लास में देखिए हमारे पास कितने थे, फर्स्ट क्लास में हमारे पास थी
हाउ मैनी देखिए फर्स्ट क्लास में हमारे पास थी 5 × 6 5 पिक्चर्स थी 30 गर्ल्स। सेकेंड क्लास में हमारे पास थी 6 6 × 36। थर्ड में हमारे पास थी 3 पिक्चर 3 6 × 18 गर्ल्स। फोर्थ में हमारे पास थी 6 पिक्चर 6 6 × 36। फिफ्थ क्लास में हमारे पास थी 5 पिक्चर्स 5 6 × 30। सिक्स क्लास में हमारे पास थी 8 पिक्चर 8 6 × 48। तो इस तरीके से हम यहाँ से देखिए ये सभी जो गर्ल्स हैं उसको क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे। जो भी एडिशन हमारा आ जाएगा दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ इन द 8th क्वेश्चन वी आर गिवन इन अ स्मॉल टाउन 5 fruit sellers sold the following number of fruit basket in the month of October. Scale we are given 1 basket of fruit equals to 50 fruit baskets. मीन्स एक बास्केट का यूज़ करके हमने 50 बास्केट्स को रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें नाम दे रखे हैं फ्रूट सेलर के और यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट सोल्ड। तो किस सेलर ने कितने फ्रूट बास्केट सोल्ड की हैं, तो यहाँ पे बास्केट्स की पिक्चर दे रखी है। एक पिक्चर कितनी बास्केट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, 50 फ्रूट बास्केट्स को। तो बाबू ने देखिए कितने किए 1 2 3 4 5 दैट इज़ 5 × 50 250 बास्केट। नेक्स्ट इज़ मनोज ने कितने की हैं, देखिए डी पार्ट में आपसे यही पूछा गया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट सोल्ड इन अक्टूबर। ठीक है, तो ये अक्टूबर मंथ का ही दे रखा है तो सभी की निकालेंगे और सभी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने कर रखा है बाबू ने के 5 पिक्चर्स हैं तो 5 × 50 250 हो गया है। मनोज की हमारे पास 6 हैं तो 300 हो गया है। अकलम की हमारे पास 4 पिक्चर्स हैं तो 4 × 50 200 बास्केट्स। और शेख की हमारे पास हैं 8 पिक्चर तो 8 × 50 400 बास्केट। और रामदीन की है हमारे पास 7 पिक्चर 7 × 50 350। तो सभी को ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बास्केट सोल्ड। इन द ए पार्ट वी आर आस्क्ड विच फ्रूट सेलर सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट। तो मैक्सिमम पिक्चर्स किसकी हैं, शेख की है ना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं शेख की जो हैं, शेख की 8 पिक्चर्स हैं 400 बास्केट। तो मैक्सिमम किसने की है, शेख ने की है। ठीक है, उसके बाद सेकंड बी पार्ट में पूछा गया था हाउ मैनी फ्रूट बास्केट वर सोल्ड बाय रामदीन। तो रामदीन की आप देख सकते हैं, रामदीन के में हमारे पास दे रखी हैं 7 पिक्चर। ठीक है, तो 7 पिक्चर्स हैं तो 7 × 50 कितनी बास्केट्स की, 350 बास्केट्स रामदीन ने सोल्व की हैं, सेल की हैं। फिर सी पार्ट में पूछा गया है हाउ मैनी फ्रूट बास्केट वर सोल्ड बाय बाबू एंड मनोज टुगेदर। बाबू और मनोज दोनों ने मिलके, तो बाबू ने हमारी की है 250 और मनोज ने की है 300। तो दोनों को ऐड कर देंगे 250 300 550 बास्केट। सो आई थिंक स्टूडेंट्स you understood all the sum. So today your homework is to complete this exercise 10.1 in your fair notebook. Thank you. Have a nice day.